یہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر صدر مملکت نے آج مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا ہے، تو آپ نے اس احتجاجی دھرنے کا اہتمام کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ موقع یہی تھا کہ ہم پی ڈی ایم جو ہے گورنمنٹ پر ضد ہے کہ وہ پی ڈی ایم لائے، اور میرے خیال میں پی ڈی ایم کا مطلب ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل، دوسری پی ڈی ایم نہیں، پی ڈی ایم ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخصی آزادی بھی چھین میں، بولنے کی فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا فریڈم تو ویسے ہی چھین چکی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا، صدر مملکت جو ہے عارف الوی صاحب جو ہے وہ خود اس سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ موقع صرف ان کو ریئلائز کرنا تھا۔ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، آپ نے دیکھا امیر صاحب کو آ کے وزٹ بھی انہوں نے کیا ہے، یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ادھر موجود ہیں ہمارے درمیان۔ ان کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ یہ آپ ایک کالا قانون لا رہے ہیں جو میرے خیال میں ایک ایسا مارشل لا لگانے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہ کر سکے۔ بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون ہے، اس کو لائرز کی تنظیموں نے اور میڈیا کی تنظیموں نے میڈیا مارشل لا قرار دیا ہے، لیکن پاکستان میں تو جمہوریت ہے، تو کیا آپ لائرز کی تنظیموں اور میڈیا کی تنظیموں کی اس ٹرم سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ پاکستان میں میڈیا پر مارشل لا نافذ کرے گا؟ حامد میر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں پورا جو صحافی کمیونٹی ہے آپ سب کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیا ہے، اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک یہ قانون ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، مگر یہ پہلا کالا قانون نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آمر آتا ہے، جب بھی کوئی سلیکٹر آتا ہے، تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ان کا یہی کوشش ہے، لیکن ماضی کی طرح جیسے ہم نے مل کے ایوب خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا، جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے، ان کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے، اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے، صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے، ہم نے وہ سارے پابندیوں کو، سارے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے، اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ قانون جو بننے والا ہے، یہ آزاد صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے، مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے۔ آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے۔ یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے، معاشی حملہ ہے، جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے۔ اتنا بڑا فائنینشل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے، وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کے جیالے آپ کے شانے بشانے کھڑے رہیں گے۔ اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پی ایم ڈی اے کا جو پرپوز لا ہے، اس کو پہلے ایک آرڈیننس کی شکل میں لانے کی کوشش ہوئی، اس آرڈیننس کے ڈرافٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اب حکومت کہتی ہے کہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ تو کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا۔ کیا بینگ
वेरी प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर, कोई ड्राफ्ट आपके सामने आया अभी तक? जो ड्राफ्ट हमारे सामने आए हैं वो जो ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में कौम के पीछे निकाला गया वही ड्राफ्ट है। कोई हमारे साथ ऐसा कोई बातचीत नहीं किया गया है, ना ये कोशिश किया गया है कि हमारा एतराज़ात दूर करे, आपके एतराज़ात दूर करे। ऐसे लग रहा है कि वो बुलडोज करना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती ये कानून पास करवाना चाह रहे हैं। मगर अगर वो खजाना खास्ता होता है तो इंशाल्लाह ताला हमारा पीपल्स लेबर फॉर जो है ब्यूरो जो है और लतीफ़ खोसा साहब आपके साथ मिलके इंशाल्लाह ताला अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके इत्तला के मुताबिक आपके ख्याल में हुकूमत नेशनल असम्बली से इस बिल को पास करवा सकती है, लेकिन सेनेट में फिर क्या होगा? हमारा जो शक है वो ये है कि हमारा मेजॉरिटी इसको साइड स्टेप करवाने के लिए वो जॉइंट सेशन से पास करवाना चाह रहे हैं। अगर ये जॉइंट सेशन नहीं तो वो दूसरा जॉइंट सेशन बुला के अपना ब्रूट फोर्स से कोई तफसीली डिबेट के बगैर दोनों हाउसेस से जो प्रोसेस है वो फॉलो किया बगैर पास कराना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमारा शक है, कोई सबूत अभी तक हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि आज प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करना है, तो अभी आप जाएंगे पार्लियामेंट हाउस में, तो वहाँ पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? हमारा पार्टी ने ये फैसला किया है कि हमारे 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस सेशन में एहतजाज करेंगे। एक जो ये आज़ादी सहाफ़त पर, आज़ार ख्याल पर हमले कर रहे हैं, और दूसरा जो वो हक़ रोज़गार पे डाका मार रहे हैं। इसलिए वो आपके हक़ रोज़गार पे भी डाका मार के आगे चले हैं, और 20,000 ऐसे ख़ानदान हैं जो एक नाजायज़ अदालती फ़ैसला की वजह से बिल्कुल आपके साथ साथ एहतजाज कर रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस हुकूमत के इस सेशन में एहतजाज करके अपना पॉइंट नोट भी करेंगे। ये जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है रिसेंट पास्ट में, क्या इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी गई थी? सर, ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जब भी हुकूमत में आते हैं वो रोज़गार दिलवाती है। तो पाकिस्तान में जिनको रोज़गार मिला है ज़्यादातर वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको रोज़गार दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा सियासी कारकुन है। जब आप नौकरी पेशा हो जाते हो, आपका सियासी ताल्लुक भी ख़त्म हो जाते हैं। और इन सारे लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है कि पहली बार नहीं दूसरी दफ़ा हुआ है। पहली 90s के दौर में इनको रोज़गार से निकाला गया, तब वो 30 साल के थे, फिर उनको बहाल किया गया, एक बार फिर उनको नौकरी से निकाला गया, अब वो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कौन आदमी जो 50 साल का हो जाता है एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं? वो इस मुआशी बहरान में जब सब मान रहे हैं कि महंगाई इंतहा पे है, बेरोजगारी गुर्बत तारीखी सतह पे है, इस किस्म का जुल्म करने का तुक क्या बनता? अगर हम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर सकते थे तो इसी पार्लियामान ने उन 20,000 खानदानों को बहाल किया है। उनके हक रोजगार पे, आपके हक रोजगार पे हम ये हुकूमत को डाका मारना नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कुछ दिन पहले आपने नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग की थी। उसमें बहुत से जो सहाफ़ी हैं आपने उनकी बात सुनी थी, जिन पर रिसेंट पास्ट में हमले हुए थे। उसमें असद तूर साहब भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे, उसमें अबसार आलम साहब भी आए, आसमा शराजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बात की। उस मीटिंग में आपको पुलिस की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सी एश्योरेंसेस करवाई गई थी। कुछ हमें उसके बारे में आप बताएंगे कि फॉलोअप उसका क्या है? सारे जो फॉलो अप हुए हैं, एक मजीद इंफॉर्मेशन कमेटी में भी मीटिंग हुआ है, हमारे सब कमेटीज़ में भी इंटरेक्शंस हुए हैं, और मैं इतना कह सकता हूँ कि अनसेटिस्फैक्ट्री है। वो इसलिए कि जिनके खिलाफ
ये हमले हुए थे वो मुतमिन नहीं है। तो जब तक वो मुतमिन नहीं होंगे हम मुतमिन नहीं हो सकते हैं। हमने उस मीटिंग में और एक ख़त भी लिखा था एक इदारे को, और हमने अपना ख़त और अपना एतराज़ात वहाँ पहुँचाए थे। बिलावल साहब, जब आप पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, ये इस प्रपोज लॉ पर आप तनकीद करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं वो काउंटर क्रिटिसिज्म में ये कहते हैं जी कि सिंध में भी सहाफ़ियों के लिए हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पर भी बड़े हमले होते हैं, तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई एक सूबा नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ सहाफ़त करना इस मुल्क में मुश्किल नहीं है। मैं सिंध के हद तक इतना कह सकता हूँ कि जो जुल्म होता है या होगा वहाँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़े हैं, वहाँ भी हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। जो भी हमारे बस की बात है उनकी मदद करने में, उनके साथ देने में हम करने को तैयार हैं। मगर हमें सब मिल के इस पूरे मुल्क में जो भी सहाफ़ियों के साथ जुल्म ज़्यादती होता है इनको रोकना चाहिए। और सिंध में जो हमारा रीजनल सहाफ़ी हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, और उनका जो भी एक इंसिडेंट होता है वो मुल्क और कौम के सामने लेकर भी आते हैं। यहाँ पर आपके आने से पहले बात हुई थी, जो हमारे RIUJ के ये धरना एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं अफजल भट्ट साहब, वो हमें रिमाइंड करवा रहे थे कि 2007 में 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हमारे धरने में तशरीफ़ लाई थी। उसके बाद से मैंने देखा कि आप पिछले साल भी आप आए थे, हमारा इसी जगह पे धरने में आए थे, आज आप फिर आए हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशन है, आप क्या समझते हैं कि इस पर आप पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये मैं आपसे ये सवाल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से कर रहा हूँ, आप मीडिया फ्रीडम और जो दीगर पाकिस्तान में इस वक्त लॉयर्स कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं उस पर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहिद कर सकते हैं? आई थिंक कि जहाँ तक ये मीडिया की बात है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही स्टांस है, और जहाँ तक दूसरे इश्यूज़ हैं, हमें सारे इश्यूज़ जो मुल्क और कौम के फ़ायदे में हैं उन पे जॉइंट ही प्रपोजल रखना चाहिए। और हमारा जो पार्लिमानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो शहबाज शरीफ साहब है, और वक्तन फ़वक्तन वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं इशू टू इशू। शहबाज शरीफ साहब से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरे तो सारी अपोजिशन जमातों के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात है। आपने क्या सुना? मैंने सुना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से कुछ ताल्लुकात आपके पहले अच्छे थे, अब नहीं है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हम ना सिर्फ ये हमारा एक नस्ल का नहीं, मुसलसल हमारे बड़ों के साथ भी थे, और इंशाल्लाह और आने वाले नस्ल के साथ करेंगे। सियासत में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये तो होता रहता है, लेकिन मेरा कोई ज़ाती इशू नहीं है मौलाना। अच्छा, आसमा शिराजी साहबा जो है वो भी कोई बात आपको सवाल करना चाहती है? बिल्कुल, वुमेन्स एम्पावरमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकेंड, ये माइक तो पकड़े था कि ये माइक दोनों साथ साथ होता के। जी सामने। थैंक यू। हेलो, अब आई बना की क्या कर रहा है? जरा आप हम लोगों को पता पे जी वो कह रही है आज टीवी का माइक रहने दे, पर बाकी भी दिखाना चाहिए। चलाएंगे ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर ये हेलो, एक मिनट आसमा क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं बाकी रात चैनल को चल रहे भाई, और ये नहीं, वो कह रहे हैं कि तमाम टीवी चैनल ने क्योंकि रिकॉर्ड किया हुआ है ना, आज का लोगो पीछे कर ले। हाँ ठीक है, मैं ठीक है। इंतज़ाम करती हूँ। अब ठीक है, चलो ठीक, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त सहाफ़ियों के धरने से जो कि पार्लियामेंट के बाहर जारी है, वहाँ से मैं आपसे खतक है, और ये बहुत अहम
मौका है कि जब हम यहाँ पे बैठे हैं उस कानून के हवाले से जो कि अभी तक प्रपोज है और अभी तक अब वो नई पार्टी बना उसका मसला पेश करने की कोशिशें की जा रही है। वो काला कानून जो कि मीडिया की आज़ादी को और मीडिया के जो तमाम इस वक्त जो हमारा आज़ादी राय है उसको सल्ब करने की एक कोशिश होगी। यहाँ पे सारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, PF यूजेज हैं, RI यूजेज हैं, जितनी यूजेज हमारी सहाफ़ियों की मुंतखब यूजेज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो चुनतखब हैं और चुनतखब का ये दौर है, लेकिन हम मुंतखब की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के लिए बात की है, सहाफ़ियों की आवाज़ के लिए। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब हम पाबंद सलासिल थे, जब हमारे बोलने पे पाबंदी थी, मोहतरमा यहीं आई थी और हम सबके साथ उन्होंने इस वक्त भी यकजहती की थी इस्लामाबाद के अंदर। तो मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस सिलेक्टेड, क्योंकि इन्होंने सिलेक्टेड कहा था सबसे पहले, तो इस निज़ाम के बारे में उनकी अब क्या राय है, क्योंकि ये मज़ीद आगे बढ़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल साहब, मैं एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हामिद मीर साहब भी, बाकी हमारे जितने सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी मौजूदगी में। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो काला कानून जिसके लिए हम सब एहतजाज कर रहे हैं, ये उस मंजिल की तरफ एक सफ़र है जो हुकूमत ने शुरू किया है, सिंगल पार्टी सिस्टम या मज़ीद आमरीत की तरफ, ये उसकी तरफ कदम है? मैं समझता हूँ कि ये एक नया कानून ज़रूर है, लेकिन ये इनका पहला कोशिश नहीं रहा है। और पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हर वक्त का जालिम, हर वक्त का आमिर ने ये कोशिश की कि पाकिस्तान की सहाफ़ी का आवाज़ बंद करने का, पाकिस्तान का मीडिया का कमज़ोर करने का। लेकिन वही मीडिया बाद में जाके उन आमिरों के उन जालिमों के अखिलीस हील साबित हो चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से मुशर्रफ ने मीडिया के साथ जुल्म किया और फिर किस तरीके से उसी मीडिया पे उसके खिलाफ उसके आमरीत के खिलाफ मुहिम चलाया गया। जितना जुल्म ज़ियाउल हक करता था, उतना बहादुरी के साथ पाकिस्तान का सहाफ़ी सच के साथ खड़ा रहता था। और ये एक नया काला कानून है। हम इस नया काला कानून को भी नहीं मानते। हम समझते हैं कि अगर ये कानून बनता भी है तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों में इतना दम है, जिन्होंने माजी में मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, जिन्होंने माजी में आमिर मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया, वो इस कठपुतली को और इस कठपुतली के सारे काले कानून को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये बिलावल साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिर सहाफ़ी तो खड़े हैं हर दौर में, पाबंदियाँ सियासतदानों ने भी, सियासतदानों ने और जमहूरियत पसंद सियासतदानों ने बर्दाश्त की है। लेकिन एक इल्ज़ाम अपोजिशन के सर पर भी इस वक्त जा रहा है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती, एक प्लेटफॉर्म पे होती, तो शायद ये जो सिस्टम इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है वो इतना आसान ना हो जाता जो कि इस वक्त है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस हुकूमत की लेजिटिमेसी की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में जमहूरियत की बात है, जहाँ तक इस मुल्क में आपका आज़ादी की, मीडिया का आज़ादी की बात है, तो सब एक पेज पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि कोई वजह नहीं है कि आपको या मुझे या पाकिस्तान का आम आदमी को, इस वज़ीर आज़म को एक और दिन भी वज़ीर आज़म बर्दाश्त करने का। वो कैसे? इसलिए हमने इसी पार्लियामान के फ्लोर पे, जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान का मेजॉरिटी साबित करके वो वज़ीर आज़म बना, उसी फ्लोर से हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करके ये दिखा दिया है कि अदम एतमाद जो एक जमहूरी हथियार है, वो जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हम इस सिलेक्टेड का जो दौर है ख़त्म कर सकते हैं। और मेरा आज भी यही अपील है जो मैं उन दिनों में कहता था हमारे दोस्तों से, कि इस मौक़िफ़ पे अगर हम सब मिल के आ जाएँ तो या हम इसको फ़ौरन घर भेज देंगे या इतना हिला के रख देंगे कि वो इस किस्म के जुल्म नहीं कर सके। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? कोई ना कोई नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान तो पैदा करना होगा जो कि सर, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का बेटा
मेरा साथ है, इधर ही खड़ा था। आपका एहतजाज में शामिल है और हमने बहुत की कोशिश की। असूलन जो PTM का हेड होता है उनका ये इम्पार्शल ऐसा कोई रोल अदा करना चाहिए, लेकिन हमने वहाँ जो उनके साथ बैठ के रिटन में तय किया, जो हमने हर मीटिंग में कहा, जो हमने उनसे अलग होने के बाद भी कहा, अब मैं इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जगह जगह पहुंच के अवाम के सामने भी रखूँगा कि हम इमरान को निकालना चाहते हैं। हमें इस सिलेक्टेड रोल को ख़त्म करके एक दरवाज़ा खोलना चाहते हैं एक नया सियासत के लिए, एक वो सियासत जो अवामी नुमाइंदगी पे यकीन रखे और जो फैसले अवाम के नुमाइंदे करेंगे वो अवाम के लिए, अवाम के मुस्तकबिल को ज़रूर सोच के वो फैसले करें। आपको लगता है कि जमहूरियत पे शबखून मारने की एक तैयारी है जिसका पहला निशाना सहाफ़ी हैं, करना क्या चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये एक तसलसल है, ये मुसलसल होता रहता है। ये हर वक्त एक कोशिश है सारे वो कुव्वतों से जो नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में यहाँ के शहरी आज़ाद हो, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से वोट दें, यहाँ के शहरी अपने आज़ाद तरीके से सोचे, यहाँ की शहरी अपने आज़ाद तरीके से बोले। हमेशा इस सच के ख़िलाफ़, इस आज़ादी के जो मुखालिफ है वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। हमें अपना कोशिश जारी रखना है। हमें अपना जमहूरी स्पेस किसी को सीट नहीं करना चाहिए। हमें मीडिया में भी वो स्पेस नहीं सीट करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वो पार्लियामान जो हमारे सामने हैं, अगर पाकिस्तान के सियासतदान अपना स्पेस उस फ्लो पे छीनने शुरू कर दे तो कोई और हमारा स्पेस में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। तो हमारा ये मेहनत होगा, हमारा ये कोशिश होगा, हमारा ये जद्दोजहद होगा कि जमहूरियत के लिए जो स्पेस है, जो अवाम का स्पेस है, वो अवाम के पास वापस ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने बात की हमसे और इस बारे में जी मैं आप लोगों का माइक कौन सा, आप लोगों का माइक कैसे हो आप? खैरियत से हो? सर आप खैरियत से हैं? आपने बड़ा बहादुरी के साथ इनके जो बहुत मेहरबानी, लोग हैं उनका मुकाबला किया है। से हिम्मत मिलती रहनी है जी। सही खाएंगे। हाँ, इसमें आवाज़ है। थोड़े इस तरह हो गया। मैं थोड़ा जगह बना रहा था, ऐसे सामने देख रहा बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बात करूँगा आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मुल्क भर से सहाफ़ी जो हैं और उनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो फेक नहीं हैं, जो जाली नहीं है, जो हकीकी सहाफ़ियों की हकीकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, मुल्क भर से आए हुए सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर पार्लियामान हाउस के सामने और पार्लियामान के माथे पर लिखे हुए कलमे के साए में यहाँ पर एक बार फिर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आमरीतों के ज़माने में भी इसी तरह सड़कों पर बैठ के सहाफ़ियों ने अपने हुकूक की जद्दोजहद की और आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, जमहूरियत की हुकूमत है। सो बहुत अफसोस की बात है कि सहाफ़ी एक बार फिर अपने हुकूक के लिए उन्हीं इमरान खान साहब की सरकार में इसी पार्लियामान से चंद गज के फासले पे वज़ीर आज़म हाउस है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक सहाफ़ियों की आवाज़ पहुँच रही होगी। यहाँ PMDA के काले कानून के खिलाफ जो सहाफ़ी धरना दे के बैठे हैं कल से, उसमें तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। गुफ्तगू उन्होंने पहले भी की है, थोड़े से मज़ीद सवाल करते हैं। सर मैं टू द पॉइंट आपसे पहला सवाल करूँगी। हुकूमत कहती है, ख़ासतौर पे वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी यौम दिफा यौम शोहदा पे, वहाँ पे उन्होंने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की थी और एक नई नैरेटिव जंग की बात की थी और एक नए साइबर वॉरफेयर की बात की थी और कहा था कि दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद रियासत के दुश्मन इस तरह से नैरेटिव बना के हमला आवर हो रहे हैं रियासत पे, इसलिए PMDA का कानून बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं आप? दो चीज़ें, एक तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा हुकूमत है, जो हमारे वज़ीर आज़म है और जो हमारे वज़ीर है, उनको हमारा फ़ौज को, हमारा फ़ौज की क़यादत को इस तरीके से कोट और कोट सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। और जो मेरा दूसरा इस पे मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल
पूरी दुनिया भर में जो एक दूसरे के खिलाफ ममालिक हैं, जो दुश्मने हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमले कर रहे हैं, मगर उन हमले के जवाब जो है कौन बेहतर दे सकते हैं? क्या ये फवाद चौधरी और उनके ट्रोल्स बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या ये जो एम्प्लॉइज वो तनख्वाह पे बिठा के उनके लिए ट्वीट्स करवाते हैं अपने शहरीज के खिलाफ, या वो आज़ाद राय रखने वाले सहाफ़ी जिनका क्रेडिबिलिटी है, जिनका दुनिया भर में उनका एक पहचान है, जब वो अपना मुल्क का दिफा करेंगे, जो कि वो ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे, वो आपके सबसे बेहतर दिफा होगा, वो एक इम्पार्शल दिफा होगा जो मानने वाले होगा। और अगर आप इस किस्म की कठपुतली से जवाब दिलवाते रहेंगे तो वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबला करने के काबिलियत नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान देख के हुकूमत इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, उनको घसीट रही है इस PMDA के कानून का जवाब? मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अब हम बहुत दफ़ा हमारे इदारे को अपने सियासी प्रॉप समझ के अपने आप को हुकूमत में जस्टिफिकेशन करने के लिए वक्तन फवक्तन, जैसे आपने इसी केस में कहा था, एक जो डिफेंस डे का स्पीच का क्या ताल्लुक है इनका इस कानून से? जब इन्होंने ये कानून इस डिफेंस डे का स्पीच से पहले तैयार किया था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस इस डिफेंस डे की स्पीच से पहले तैयार की थी, लेकिन ये जानबूझ के हमारे इस तकरीर को इसके साथ मिला के कुछ किसी किस्म का सियासी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाह रहे हैं, और इसी किस्म के बयानबाजी से, इसी किस्म की कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आप आवाम की सियासत करते हैं, आवाम की बात करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह सहाफ़ियों के धरने में आते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए हुकूमत कहती है कि आप सियासी मकासद के लिए इन मामलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत कहती है कि बाकी सियासी जमातें आवाम की बात करते हैं, लेकिन हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। तो PMDA के काले कानून के खिलाफ किस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन? जहाँ तक ये हमारा सियासी फ़ायदा, वो आप बेहतर हमें बताएं। हम तो हमेशा आज़ाद मीडिया की बात करते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो, और आज़ाद मीडिया होगा तो हम सब का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, और अगर उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये पूरा मुल्क का फ़ायदा में होगा, किसी एक जमात का फ़ायदा में नहीं होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जब आमिर ज़िया के बाद शहीद बीबी ने प्रेस पे पाबंदियाँ उठाए थे, तो शहीद बीबी से पूछा गया कि ये तो दिन रात आपके खिलाफ ही लिखते हैं, किसी और के खिलाफ लिखते ही नहीं है, आपने मीडिया को आज़ादी क्यों दी? तो शहीद बीबी ने कहा कि ये तो 10 साल का बरास है, और अगर वो मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो उनको निकाल दे दें। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाएंगे, हमेशा वो इस किस्म का ताकत रखेंगे कि वो तकलीफ भी बर्दाश्त कर सके। और आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना इतना गैर फाल पार्लियामान नहीं देखा होगा। हर दौर में जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज़ चोर दरवाज़ों से और ऑर्डिनेंस से भी पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेशन हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए, और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वज़ीर गाली देते हैं, ज़ाती हमले करते हैं, और अवाम का मसाइल का हल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अभी आपने जो लोगों को निकाल दिए हैं उनके धरने में भी जाना है, तो जो कैमरा मैन हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि अपने कैमरे जो हैं वो जो हमारे बेरोजगार साथी हैं जिनको बेरोजगार किया गया